गुड इवनिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज आप ट्यून किए हैं। आज के हमारे गेस्ट ऐसे गेस्ट है जो सब कुछ कर सकता है। उनकी काबिलियत, अगर आप उनकी काबिलियत की तारीफ हम करें तो फिर इट्स नॉट ओनली रनिंग, ही इज एक्सीलेंट, इज अ ब्रिलियंट स्कॉलर। He is a sports person who believes knowledge is power. Was a district topper in 12th standard board exams. Also cleared IS prelims. His CAT score was 99.68 percentile. He actually defies this concept कि ना अगर पढ़ोगे लिखोगे तो ही होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। तो बहुत ही विपरीत उनका जो है लाइफ है, एंड आई वुड से दैट he is excelled in everything what he does. उनकी अगर रनोग्राफी देखें या तो 21st स्टेडियम रन उन्होंने किया है, 12 आवर स्टेडियम रन किया है, 30,000 लाइफ टाइम किलोमीटर्स उन्होंने किया है, कॉन्जिक्यूटिव marathons, 222 consecutive half marathons, 241 consecutive Sunday marathons. लास्ट ईयर अगर उनके जो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम एक महीने के देखें तो 1959 किलोमीटर्स. He has done 333 half marathons in the last financial year, and 43 ultra marathons in total he has done. It gives me great pleasure and privilege. I would say that in many ways, he's an inspiration to many, and he has aspired to be an inspiration to many through his running. He has got a very large following in Strava, and he's very happy to share his data. Great pride and privilege to do this interview with Keshav Manik Tahala. Namaste. Hi. How are you? Good. Very good. केशव जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। पहला सवाल जो है, आपके प्रोफाइल पिक्चर हम फेसबुक में देखें तो बाइक, गॉगल्स, लंबे बाल और छोटी दाढ़ी, और उसके बाद आपने रनिंग शुरू किया तो बाल गए, दाढ़ी बड़ी हो गई। इज दैट रनिंग का असर है या सिर्फ आपने चेंज किया कुछ? No. I'm a hardcore extremist, so it's either 0 or 100 for me. So जब बाल थे तो बहुत लंबे 2 feet तक थे वो, and then I got bald on 20th June 2010. So okay. That's और दाढ़ी बढ़ी तो फिर वो अच्छे से बढ़ाई. Yeah, I thought very inspired by any rock groups during that time of the long hair days. No. I'm inspired by it's all about extremism. So for the extremism, it went on. Non-conformist. Yes. I never believe in trends or following anyone. I believe in making my own ways. Okay. Your better half has already tuned in. Anshika saying hello, Urmila Lal saying hello, Meeta Saha saying hello, Nilima ma'am saying hello, Mona Balian saying hello, Milind Halbe saying hello, Anu Joseph from Trivandrum saying hello, Vikas Jain saying hello, Dr. Mamta Sharma, उर्मिला लाल, राकेश सिंह, मोना. सो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपको हेलो कह रहे हैं, एंड काफी उत्सुक है आपकी बातें सुनने के लिए, एंड हमारे चैनल में उन्होंने ट्यून कर दिया है. तो इफ यू वांट टू से अ कंबाइंड हेलो टू एवरीवन, यू कैन डू दैट. Yeah. Hello to everyone who are tuned in and who would be tuning in for the next 1 hour. Okay, thank you very much. So Keshav ji, we all know about you. I mean, because काफी आपके जो profiles है, it has been there everywhere. We know that you're from a family which is into farming and also in other businesses. Just tell us about your journey for running. How did it start? Yeah, it started in 2010, 11 years back. It was with a running and living event of 21 kilometers in Gurgaon. Somebody told me that you can run 21 kilometers and 42 kilometers. So I registered when I was registering. और generally जो सब करते हैं, जो करना भी चाहिए, पहले 5K, फिर 10K, फिर 21 and so on. But since I was always obsessed with numbers, तो वहाँ पे उसकी description पे there was one thing that people who are doing 21K and above would be getting the timing certificate, that exact time that you have
done to a half marathon in this much time. So just for the love of numbers, I went straight away for the half marathon rather than doing 5K and 10K, and it was heavy on me. It was not easy, so it was heavy on me because I was not at all trained. So it started in 2010. Okay, was it a alone decision या कोई दोस्त भी थे आपके साथ, जिन्होंने आपको बोला चलो करते हैं हम दोनों साथ में? The people who pushed me or who made me Yes. exposed to this event, they did not participate, so I was alone doing the stuff. They dragged me into it, but they were not there. अच्छा अच्छा, तो जैसे बॉम्बे में कहते हैं टांग दे दिया तभी एन वक्त पर. Yeah. ओके, आई मीन ये एक्सट्रीमिज्म का जो सिलसिला है वो जारी रहा. आपका जो 3 months के ट्रेन, आपने जो 21 किलोमीटर्स किया, उसके बाद जो है विद इन 3 months you jumped a number so high which is unimaginable, which is 100 kilometers. बताइए, what made you do that? I know it is numbers, but 21 to 100 is a huge jump. And how did you manage this? उस टाइम तो 100 के बहुत ही बड़ा था. अब तो लोग 8 घंटे में भी कर देते हैं. अब नेशनल रिकॉर्ड इज 7 hours 32 minutes. तो तब इट वॉज अनहर्ड ऑफ. मतलब मेरे को भी नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको अल्ट्रा रनिंग बोलते हैं, कि एनीथिंग ओवर 42 इज अल्ट्रा, ये सब भी नहीं पता था. तो आई डिड माई फर्स्ट हाफ मैराथन इन 2010. उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया, जैसे हम एग्जाम्स में करते हैं, 1-2 दिन पहले पढ़े और दिया, फिर भूल गए, फिर अगले साल. तो उसके इमीडिएटली बाद जो अगला इवेंट था वो 2011 का ADHM था. तो फर्स्ट हाफ मैराथन ये किया, फिर 1 साल कुछ नहीं किया, फिर ADHM 2011 दौड़ा, फिर रनिंग एंड लिविंग का ये रिपीटेड इवेंट दौड़ा. तो 3 हाफ मैराथन टोटल थी और टोटल माइलेज 200 किलोमीटर थी. क्यूमुलेटिव माइलेज लाइफ टाइम वाज 200 किलोमीटर्स. तो एक डेट आ रही थी 12-12-12. तो 13-13-13 होता नहीं था. तो ऐसे ही कुछ लोग डिस्कशन करने लगे कि उसको मेमोरेबल बनाने के लिए कुछ करते हैं, ये करते हैं. फिर किसी ने कहा 50 किलोमीटर दौड़ते हैं, किसी ने कहा फुल मैराथन करते हैं. तो वो हॉलिस्टिक सा नहीं लगा मुझे. नंबर 100 ज्यादा खूबसूरत दिखता था, तो मैंने कहा 100 ही करेंगे. और मेरे होम टाउन से चंडीगढ़, जहाँ मेरी सारी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन है, वो 100 किलोमीटर था. तो जो मैंने बाइक पे काफी बार किया हुआ था, तो 100 किलोमीटर से दिखता भी था कि भाई यमुनानगर से चंडीगढ़ इस तरह से. और मेरे को A to B हमेशा फैसिनेट करते थे, कि पॉइंट A to B, चंडीगढ़ टू दिल्ली, कारगिल टू कन्याकुमारी, दिल्ली टू बॉम्बे, इस तरह की चीजें, कि यहाँ से वहां, या पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब किसी तरह से कवर किया जाए. तो आई स्टिल फैसिनेट अबाउट दोज थिंग्स. सो आई डिसाइडेड कि 100 ही करेंगे और 12-12-12 को ऐसा करते हैं. तो इसको अल्ट्रा रनिंग बोलते हैं. इसके लिए फ्यूलिंग करना होता है, ये सब पता ही नहीं था. बिना पता ही आई जम्प्ड इनटू इट, और उसमें बहुत सारे ब्लंडर्स भी हुए, सब कुछ हुआ, बट आई डिड इट. इट टुक मी 18 hours at that point of time. That's wonderful. So what did you learn from it? Everything you learn from it. So what were your learnings for that 100 kilometers run? कि we should not limit ourselves to anything. सब लोगों ने उसमें भी ऐसे ही था. अच्छा, तो जिन लोगों ने हमने प्लान किया था, हम 3-4 दोस्त थे. तो जिस दिन मैं दौड़ रहा था उस दिन मैं अकेला था. किसी का कोई दोस्त आ गया, किसी का कुछ हो गया, किसी ने सच बोला, किसी ने झूठ बोला, बट आया कोई नहीं. तो आई वॉज अलोन डूइंग दैट. तो बट फिर भी उसके बाद आई डिड दैट, और वहां पे समझ में आया कि वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ, कि ये नहीं हो सकता. फिर उन सब ने कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे, ये हो थोड़ी ना सकता है, कि चल के भी खत्म नहीं होगा, हमें पता है, तो हम नहीं आ रहे. तो दे बैक्ड आउट. बट मैं थोड़ा सा जिद्दी था, तो आई फॉलोड माय पाथ. ये क्या वही दोस्त है जिन्होंने आपको 21 किलोमीटर के लिए घसीटा? डिफरेंट सेट ऑफ पीपल. और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है रनिंग में, वो ऐसा ही रहा है कि people commit first and 90% of out of them they do not turn up. हमारा यमुनानगर में भी एक रनिंग ग्रुप हमने बनाया. उसमें जब हम हेड काउंट लेते थे कि कौन कौन सुबह आ रहा है, और उसमें बड़ा अच्छे से लिखते हैं कि यू कैन चूज एनी डिस्टेंस फ्रॉम 1 किलोमीटर टू 21 किलोमीटर्स. कि आप 1 भी दौड़ सकते हो, 3 भी दौड़ सकते हो, चल भी सकते हो, क्रू कार भी है, आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा सब कुछ, और विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग. वो सब कुछ हम खुद से मैनेज करते हैं यहाँ पे. तो रात तक 50-60 लोग नाम लिखवाते हैं. सुबह
जो मैं मैसेज गुड मॉर्निंग का डालता हूँ वो 10 पढ़ते हैं और 4 ग्राउंड पे आते हैं। तो वो तब से मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि पीपल ओवर कमिट एंड दे डोंट टर्न अप। मेरे साथ ऐसा रहा, तो इट वाज ऑल अलोंग। तो उसमें 2 लेसन थे कि वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ, जो दिमाग में आए उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और वी शुड एक्सप्लोर फर्दर एंड फार्दर, नंबर 1। एंड नंबर 2, यू शुड ट्रेन एंड हर चीज का एक बैकअप प्लान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो उस रन में थी कि हर चीज का प्लान बी होना चाहिए हमेशा, दे शुड बी अ बैकअप प्लान। ओके, तो क्रू मेंबर कौन था आपके लिए? मैं मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड निर्मल सिंह फ्रॉम यमुनानगर ओनली, तो वो अकेला था। बस हम 2, वैसे प्लान तो 10 लोगों ने किया था, बट हम 2 लोग थे, बस वो गाड़ी चला रहा था साथ में और मैं दौड़ रहा था। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी और हैं। तो डरा तो मैं बहुत सारा हुआ था, और डरना जायज भी था कि कैसे होगा। और तो उस टाइम पे अल्ट्रा रनिंग बहुत नेसेंट स्टेज पे थी इंडिया में, बहुत हैंडफुल, वेरी वेरी माइन्यूट एंड हैंडफुल ऑफ पीपल वर देयर। सो अरुण, द माइटी अरुण भारद्वाज सर, तो उनको मैंने देखा था। उन्होंने उसी टाइम पे K2K खत्म किया था। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू डू कश्मीर टू कन्याकुमारी। या वो मुझे भी बहुत फैसिनेट करता था, तो मेरा अगला अगला टारगेट वही था कि इसके बाद मुझे वो करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, और जो दूसरी लर्निंग है कि आप कभी भी किसी चीज को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, केशव ने 100 दौड़े तो हम ऐसे 100 दौड़ सकते हैं, उसने ऐसा किया तो ऐसे, उसने 7.5 घंटे में किया तो मैं ऐसे ट्रेन कर सकता हूँ। यू हैव टू फॉलो योर ओन इंस्टिंक्ट एंड यू हैव टू डिराइव योर ओन पेस, सेट योर ऑन पेस एंड फॉलो दैट। तो उन्होंने कहा मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती, तो मैं शहद ले लेता हूँ बीच में। और ऐसे उन्होंने 2-3 चीजें बोली। शहद मुझे थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगा, तो मुझे लगा कि ना ये सारी गेम डाइट की होती है, तो शायद शहद खाने से चलता जाएगा। तो जब मैंने पहला ब्रेक लिया 21 किलोमीटर पे, तो मैंने 1 चम्मच शहद खा लिया। उसके बाद वो मेरे यहीं गले पे अटक गया और यहाँ जलन करने लगा। तो उसके बाद मेरा देखने का भी दिल नहीं गया उसे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। उनका डाइट जो है वो 600 किलोमीटर साउथ अफ्रीका रन में भी यही किया था। एंड वहां के रेस डायरेक्टर उनको खास आके पूछा, आप कुछ खाएंगे प्लीज, आपके लिए कुछ मंगाओ क्या नहीं, बिकॉज वही था शहद एंड नट्स जो वो खा रहे थे। आई थिंक दैट वाज अ सीक्रेट, बट इट कैनॉट, लाइक एज यू सेड, कैनॉट बी कॉपी पेस्टेड। कॉपी पेस्ट, और यू हैव नॉट ट्रेन्ड योर बॉडी टू दैट। और आखिरी एकदम से तुम पहले दिन, अगला लेसन इसमें यह है कि डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू ऑन द रेस डे और फॉर द इवेंट। आपको अपना डाइट, और वो कई लोग बिल्कुल गुड़ शक्कर पे दौड़ रहे हैं, कई लोग शहद पे दौड़ रहे हैं, कई लोग जेल्स पे दौड़ रहे हैं। मैं कोक पे दौड़ता हूँ, मुझे सिर्फ कोक सूट करती है। तो वो सबका अपना है, एंड यू शुड फॉलो योर ओन थिंग। Yeah, but it's amazing that ना आपका जो 100 किलोमीटर आपने फर्स्ट रन किया 18 hours, but your personal best time is in 100 kilometers is 10:29:37, which is almost 7.5 hours lesser than the first run. ये जो साइकिल जो है, कितना टाइम लगा आपको to achieve that, and how did you manage? Just tell us about. I'm very interested to know कि वो रन के बारे में बताइए जहाँ पे आपका पर्सनल बेस्ट टाइम हो गया था। तो इसमें ये जर्नी तो 8-9 सालों की है, क्योंकि वो 2012 था और ये मैंने 2020 में किया है। तो इट टुक मी 8 years, बट आई नेवर ट्रेन्ड फॉर अल्ट्रा मैराथन, एंड माय सीरियस रनिंग स्टार्टेड फ्रॉम 2016। तो 2010 से लेके 2015-16 ऑन एंड ऑफ होता था कि जब इवेंट आया उससे 10-12 दिन पहले थोड़ा सा दौड़े और उस तरह से। तो दैट वाज नॉट ट्रेनिंग और दैट वाज नॉट प्लान। तो इट टुक मी 2-3 years टू शेव ऑफ द time, and I did a very religious heart rate based training, जिससे मुझे अपना लैक्टिक थ्रेशोल्ड और ये सारी चीज़ें पता चली। एंड सो आई मास्टर्ड 550 पेस बाय रनिंग। जो जितनी मेरी हाफ मैराथन जो पिछले साल 300 सवा 300 हाफ मैराथन थी, वो सब 550 की पेस पे और 120 to 140 की हार्ट रेट पे की मैंने। सो ये पिछले साल की ट्रेनिंग हेल्प मी अलॉट कि आपने हार्ट रेट को नीचे रखना। जब मैंने शुरू किया तो इट हेल्प मी कि इसको आप सस्टेनेबल लंबा लेके जा सकते हो। तो that's how it happened. That is also nice. I mean, since I would say that you're a scholar, with I'm sure you would have researched a lot on this heart rate based training. So if you want to give some tips to the people on how to do this kind of training, few tips from your side, it'll be wonderful for the audience to hear on how to maintain this heart rate training, because
today you sent me a clip on today's run, and that was amazing that you did what 115 के heart rate Yeah. में आपने pace किया था, which is amazing. So just tell everyone, how do you do this kind of training, and what can help them? Okay. So, heart rate is the only thing which I have followed religiously till date. And otherwise, I have defied all the norms. I don't do any strength training, no stretching, हाइड्रेशन मैं कोक से करता हूँ, और ये इनमें से कुछ भी मैं एंडोर्स नहीं करता. बाकी सब चीज़ें करनी चाहिए, और मैंने रनिंग पे काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, पूरा इसका साइंस क्या है ये सब समझने के बाद. बट मुझे जिस चीज़ में मज़ा आता है मैं सिर्फ वही कर पाता हूँ. सो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो साइंटिफिक और ढंग की है कि हार्ट रेट ट्रेनिंग जो मुझे समझ में आई कि ट्रेन योर सेल्फ इन जोन 1 एंड जोन 2, और बिल्कुल लेमैन की भाषा में 120 से 140 की हार्ट रेट पे मैक्सिमम 80% ऑफ योर रन्स शुड हैपन बिटवीन 120 टू 140. दे हैव हेल्प मी इमेंसली. तो मैं अपने 6 दिन की ट्रेनिंग 120 से 140 की हार्ट रेट पे रखता हूँ, और संडे को मैं एक हाफ मैराथन 4-5 सालों से कर रहा हूँ, उसको मैं एक रेस की तरह करता हूँ, एंड ऑलमोस्ट हर संडे वो सब 100 तक चली जाती है बिकॉज ऑफ दिस हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग. कि आपने जो एरोबिक बेस बनाया होता है उसके ऊपर यू कैन क्लॉक योर पी बेस. ओके, थैंक यू. यहाँ पे एक सवाल आया है जगदीश हिरानी का कि क्या व्हाट इक्विपमेंट कैन यू यूज टू चेक द हार्ट रेट? हाँ, इसके ऊपर तो मैं सबको बिल्कुल एक थंब रूल बनाने के लिए भी कहूँगा, और ये मेरी अपने ऊपर और मेरे 100-200 को रनर्स जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैंने ट्रेन किया है, जिनको मैंने ट्रेन किया है, उससे आई कैन सेफली से कि इन्वेस्ट इनटू अ हार्ट रेट बेल्ट. 2-4-5 हजार रुपए से वो आ जाती है. घड़ी कोई भी हो, हार्ट रेट बेल्ट होनी चाहिए. आई डोंट बिलीव इन दिस रिस्ट बेस्ड हार्ट रेट. दे आर नॉट एक्यूरेट, और एक्यूरेट नहीं, ये पूरा हेवाया जा सकती है. और मैं जब 250 की पेस पे स्प्रिंट करता हूँ तो ये 120 दिखा रही होती है हार्ट रेट, और जब मैं 650 730 की पेस पे इजी रन कर रहा होता हूँ ये 180 190 दिखा रही होती है. तो आई डोंट बिलीव इन दिस. सो इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ. और हार्ट रेट बेल्ट जो बिल्कुल कन्वेंशनल, आज से 5-6 साल पहले रिस्ट बेस्ड हार्ट रेट, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर्स थे ही नहीं. तो शुरू से हार्ट रेट चेस्ट ट्रैप वाली जो चीज़ शुरू से 30-40 सालों से वही आ रही है हार्ट रेट को मेजर करने के लिए. तो सिर्फ उसको इन्वेस्ट करने के लिए जूतों से ज़्यादा, घड़ी से ज़्यादा, आपके उसमें अगर जीपीएस वॉच नहीं भी है और एक हार्ट रेट बेल्ट जो आपको सही हार्ट रेट वैल्यूज दिखा रही है, तो इन्वेस्ट इनटू दैट, एंड दैट कैन डू वंडर्स. Okay, that's nice. Any particular brand which Keshav uses? आई एम करंटली यूजिंग गार्मिन. इससे पहले मैंने सुनतो को काफ़ी यूज़ किया है. पोलार है और वाहू है. दीज आर द ब्रांड्स. यू कैन चूज एनीथिंग जिस पे आपको अच्छी डील मिले और जो आपको इजीली अवेलेबल हो सके. Okay, wonderful. Yeah, I know that कि अगर watch अगर loose हो जाए तो heart rate can, if the watch is loose or you're sweating also, then the heart rate can also go haywire, and that is not the correct way of measuring the heart rate. So very correctly said. और So स्पेशली when हम और yeah, स्पेशली sorry. हम डार्क स्किन्ड लोगों के लिए वो उतना ही इनएक्यूरेट होती जाती है, क्योंकि इट्स बेस्ड अपॉन दिस. इफ यू कैन सी देयर आर Yeah. सम लाइट्स. तो lights, there are 3 kind of lights which penetrates into your skin, and they do some readings, and that translates into the heart rate. So dark skin में इसको penetrate करने में और problem होता है. तो आई डू नॉट प्रिस्क्राइब दैट. इसको बंद कर देना चाहिए अपने ऑप्टिकल हार्ट रेट, इसको रिस्ट को, हार्ट रेट को, और चेस्ट ट्रैप को पेयर रखना चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है, ये भी चल रही होती है, आप बेल्ट भी लगाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि किसकी मेजरमेंट आ रही है. तो उसको सेटिंग में परमानेंटली ऑफ करके आपको चेस्ट ट्रैप यूज करना चाहिए. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Yeah. If if you want to train with heart rate, and heart No, rate training has been recommended by Yeah. for amateur runners like us, it's a very good training. And as you get older, you have to be more careful of the heart rate what you're running. So I guess I like that zone 1 and zone 2 is where you have to train 80% and more.
to ensure that you will achieve that. So आपका जो currently अभी zone is I mean what zone 2 में आप भागते हो? जो मेरी लेजर ट्रेनिंग होती है जोन 1 में, और जो मैं 550 की पेस जिसको मैंने मास्टर करने की कोशिश करी थी उसको जोन 2 में. So zone 1 and 2. Very nice. So when I read about you, Keshav, I read this कि ना आपका जो inspiration था when you started running was Fauja Singh ji. So tell us, you know, what inspired. I mean, what did you take from him or his lessons from his life, and how did you implement that in your training? When I read about him, this was my third running book. जिसको मैंने गुरु धरा हुआ है रनिंग में, ही इज डीन कार्नेजेस फ्रॉम यूएसए. सो आई फॉलो हिम रिलीजियसली. तो सबसे पहली किताब मैंने उनकी पढ़ी, और उसके बाद फौजा सिंह के बारे में जब पढ़ा तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि ही स्टार्टेड रनिंग एट द एज ऑफ 89 and he is 109 now and he is still running. He started running at 89. और हमारे यहाँ क्या होता है 50-60 में जनरली लोग कहते हैं हमारी तो रिटायरमेंट की उम्र होगी. अब मैं यहाँ पे जब अपने स्मॉल टाउन में रनिंग की बात करता हूँ तो पीपल फ्रॉम 45 to 55, इवन पीपल रेंजिंग फ्रॉम 45 to 55 वो एक दलील देते हैं कि इस उम्र में हमारी बूढ़ी हड्डियां अगर चटकेंगी तो जुड़ेंगी भी नहीं, तो इसलिए हम वॉक करते ही ठीक है. वी शुड नॉट रन ऑन रोड्स. तो यहाँ 45 साल का बंदा अपने आप को रनिंग के लिए एलिजिबल नहीं मानता है, एंड ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 89. तो मुझे सबसे ज्यादा ये फैसिनेट करा था, एंड ही डिफाइड ऑल द लॉजिक्स. और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो एक्सपोजर का होता है. ही मूव्ड टू इंग्लैंड इन एट द एज ऑफ 78 और 80. अगर वो इंडिया में होते, जो मुझे समझ है, जितना मैंने समझा है, वो शायद कभी भी ना दौड़ते, क्योंकि यहाँ पे ना वो माहौल है ना आप देखते हो. और अगर उस उम्र में दौड़ने लगेगा तो लोग मखौल या मजाक ज्यादा करेंगे, तो पीपल डोंट इवन डेयर टू स्टार्ट न्यू थिंग. वहां पे जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया, ही रिप्लेस्ड डेविड बेकम एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास इन 2002 और 3. सो वहां पे उसकी इतनी हुक्कत है, इतनी वैल्यू है कि लोगों ने उनको कितना अप्रिशिएट किया, एंड दैट पुश्ड हिम फर्दर एंड फार्दर. ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे जब एक्सपोजर नहीं होता तो वो शायद, अगर ये दौड़ना होता तो वो 50s 40s 30s में यहाँ दौड़ना शुरू कर देते हैं ना हमारी तरह. यहाँ तो वो उन्हें पूरी जिंदगी किसानी करी, कभी रनिंग उनके दिमाग में नहीं है. तो वो एक्सपोजर से जो चीज़ उन्हें वहाँ पे मिली, तो मुझे ये 2-4 चीज़ें उनके बारे में बहुत अच्छी लगी. अच्छा, that's wonderful. यहाँ पे अगर आपका जो एक रिकॉर्ड देखे, यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ऑफ रनिंग हाफ मैराथन्स एवरी संडे, जो आपने अभी तक मेंटेन किया है, एंड इट्स लाइक अ रेगुलर थिंग फॉर यू नाउ. इस जुनून के बारे में बताइए लोगों को कि ये कब से शुरू हो गया और आप अभी तक क्यों मेंटेन कर रही है? It started on September 11, 2016. तो उसे 4.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं अब. 242 इज द करंट नंबर, 242 या 243 हाफ मैराथन्स होगी. तो मुझे हमेशा सिमेट्री बहुत ज़्यादा अपील करती है. जैसे आज के जो लैप्स से 655 कोई भी चीज़ है, मैं कोई भी रन जब शुरू करता हूँ, जो मेरा पहला दूसरा किलोमीटर आ जाता है मैं उसको बांध देता हूँ, चाहे वो पेस 430 है चाहे वो 730 है. जिस पे दूसरा तीसरा हो गया सारे उसी पे करने हैं. चाहे 50 तक चलना है तो उसी पे चलना है. तो ऐसे जब वो 2-4 संडे कंसेक्यूटिव हुए, फिर वो बंडल सा होने लग गया, 5-6 हुए. इट स्टार्टेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ADHM. तो एक एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन है जिसको मैं बहुत रिलीजियसली करता हूँ. 10 there have been 10 consecutive एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन जो मैंने करी हैं, उसको मैंने कभी भी मिस नहीं किया. और उसमें I try to shave off my time every year. तो लगभग इन 10 सालों में I started from 242. इस बार का इवेंट 131 में मैंने किया. तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हाफ मैराथन शुरू हुई थी. तो जब वो हो गया तब लगा 12-13 हो गई थी. मैंने कहा चलो अच्छा 20 कर लेते हैं. फिर 52 का टारगेट था पहले, फिर 52 हुआ, फिर 52 से 100. फिर जो मैं चाहता हूँ, आई वांट टू डू 1000 consecutive Sunday half marathon. So it would take me 19.5 years to complete that. So let's see how it would go. और इसी उसके ऊपर I have completed लास्ट मंथ, अभी मैंने गिना नहीं है, बट लास्ट मंथ सेफली वो खत्म हो गई थी 1000 लाइफ टाइम हाफ मैराथन जो मैं संडे की करना चाहता हूँ. तो अब तक का नंबर
हाफ मैराथन रिकॉर्डेड नाइकी प्लस और स्ट्रावा से 1000 हो गया है, जो आई थिंक आई एम द फर्स्ट इंडियन नेशनल हु हैव done 1000, who have reached this number. Wonderful. That's nice. And I'm sure कि on the way you have inspired many. One of your lot of fans out here who says Amit is saying you run like a machine. You're not human. You're superhuman. So and Gagandeep saying you are like the PhD in heart rate because you credit your better timings to the heart rate based training. Is that true? Yes, certainly. This is the only one thing which has worked in my favor और जिसको मैंने ढंग से फॉलो किया है. I have never done intervals, I have never done tempo runs, कुछ भी और sprints, hill workout जो करने चाहिए, but I have not followed anything. सिर्फ हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग से ये जर्नी जो छोटी सी या बड़ी सी हुई है वो हार्ट रेट से हुई है. Okay. There's a question out here. What's your opinion on bare feet running? Have you tried bare feet and what is your opinion on it? Yes, I have certainly have tried that और मुझे काफी समझ में आती है barefoot running. I'm a huge Nike fan, तो मेरे पास ना काफी सारी कलेक्शन हो गई है शूज की. कलर्स जो जितने सुंदर कलर्स आते हैं वो मैं इकट्ठे करता गया. तो और जब इकट्ठे करने शुरू किए थे तो जो हम पढ़ते हैं कि एक शू की लाइफ जो होती है वो 350 to 500 किलोमीटर्स होती है, 250 माइल्स, 250 to 300 माइल्स एक शू की लाइफ होती है. तो मुझे लगा कि हम जितना दौड़ रहे हैं वो खत्म होते जाएंगे, बट या तो मेरी सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से या मेरे कम वजन की वजह से तो आई रिटायर माई शू एट अराउंड 4000 किलोमीटर्स. तो वो 4000 किलोमीटर चल जाता है. तो अब तक वो शूज रिटायर नहीं हुए, तो मैं उनको जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ कि वो शूज खत्म हो और मैं बेयरफुट रनिंग करूँ. मेरे जितने पीबीज हैं वो नाइकी में इनकी वर्जन है जो बेयरफुट के क्लोज होते हैं 5.0, 4.0, 3.0. तो 3.0 इज क्लोजेस्ट टू बेयरफुट रनिंग. तो मेरे जितने पीबीज हैं वो 3.0 में हुए हैं. तो जो मुझे समझ में आता है, जितना मैंने ट्राई भी किया कि आपकी एक तो रनिंग फॉर्म करेक्ट हो जाती है बेयरफुट रनिंग से, और मुझे ये लगता है कि माय बेस्ट इज येट टू कम और वो बेयरफुट रनिंग से आएगा. सो मुझे समझ में आती है. अच्छा. Are you going to buy that Kipchoge's recommended shoe, the Nike, the new one? No. अब तो मैं चाहता हूँ जल्दी खत्म हो जो पुराने इकट्ठे किए हुए हैं और बेयरफुट करो. यहाँ पे थोड़े लोग मांग रहे हैं आपके यूज शूज, पूछ रहे हैं कि भाई कितने पेयर्स हैं आपके पास? How many pairs of shoes you have? I have a collection of around 200 pairs. So तो एक अलग से रूम बनाया गया होगा. हाँ या I can, हम इसको अभी देख भी सकते हैं जहाँ पे मैं बैठा हूँ. so ऐसे 9-10 क्लोजेट्स हैं. ओके. शूज का ही है ऐसा. अच्छा. That's nice. हाँ, you get me my size, तो जिसको चाहिए I would be happy to. No, what does Anshika say about all this, about your shoe collection? It's amazing that you have a partner who is also into ultra running, and she's also into running. What is Anshika's thoughts on your huge shoe collection? Does she have equal numbers of shoe collection like you? ये तो आप घर पे लड़ाई कराने वाली बात कर रहे हो. She's listening, that's why you can tell it. ये रिकॉर्डेड भी होगा. तो वो तो इसको एक लाइन में सम अप किया जा सकता है जो बोलती है कि कह रही कि शादी के बाद मेरी आधी जिंदगी तुम्हारे जूते और कपड़े संभालने में निकल गई है. तो वो जगह बनाती रहती है, ढूंढती रहती है, कुछ अपने घर पे रख के आती है, कुछ ऐसे. तो वी आर डोनेटिंग सम शूज, सो इट्स इन प्रोसेस. तो मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ. और बेयरफुट आई बिलीव इन मिनिमलिस्टिक रनिंग. सिर्फ एक हार्ट रेट बेल्ट, एक गार्मिन और एक शॉर्ट्स, बस ये होना चाहिए. जैसे थॉमस बॉबी फिलिप जो जिस तरह से दौड़ते हैं, तो आई फोरसी माई सेल्फ. दानिश आमिर ने कहा कि पहला शू नंबर लिस्ट में नंबर 1 उनका ही है, बोलता है. इनका यूके, इसका यूके 11 है साइज. अच्छा. अंशिका जी ने जवाब दिया है कि उनके पास सिर्फ 6 पेयर्स ऑफ शूज है. आपका जो शू केयर करने में लाइफ टाइम निकल जाएगा, बोलता है. So she has already replied. But it must be great to have a partner, who also into running. So how are the conversations at home, especially during dinner time, about running? वो एंडलेस हो जाती हैं. बट अब करंटली शी इज मोर इनटू योगा. तो जितने मेरे बर्थडे रन्स हैं
और जो भी बड़े इवेंट्स होती है वो सब वही प्लान करती है। तो जनरली सरप्राइज के तौर पे 10-20 रनर्स को प्लेटर में एक दिन पहले ले आती है, जो यमुनानगर में आते हैं। जितने लोगों की आपने बात की, गगन और गगनदीप सिंह जिन्होंने अभी कमेंट किया था, और ये सब, तो शशि फ्रॉम देहरादून, ये सब लोग आए। तो अब वो रात को फिर वो कॉन्वर्सेशन, जब 4-5-10-20 रनर्स आपने इकट्ठे कर दिए तो क्या बात होगी, तो सिर्फ रनिंग की बात होती है। वो चलो 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 खाना खाएं, रनिंग को छोड़ के बाकी सब बातें होंगी। तो वो वैसे हो जाती है। बट हम वी गो फॉर लॉन्ग रन्स, 30 Ks टाइप के 3-4 घंटे, विदाउट फोन और विदाउट एनीथिंग। तो वी हैव सम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस व्हाइल रनिंग। हम रनिंग के बाद रनिंग को डिस्कस नहीं करते, रनिंग को करते हुए रनिंग को डिस्कस करते हैं। वो और फैसिनेटिंग है और इंजॉयबल है। ओके, ये अगला सवाल जो है आपसे मेरे ख्याल से कई बार आपसे पूछा गया है, इट्स अबाउट योर न्यूट्रिशन एंड योर लव फॉर कोक। रिश्ता क्या है ये? हाँ, तो पर मेरे को जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि कोक लेनी तो नहीं चाहिए कि एक सीधा शुगर का आपको एक पुश है सिर्फ, वो फ्री शुगर का। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की, क्योंकि मुझे 10, अच्छा लोग कहते हैं भी हड्डियां गल जाती हैं ऐसे कि इतनी पीने से, और मैं 1 लाख कैंस लगभग पी चुका हूँ आज तक 10 सालों में, 180 ml वाले। तो अगर गलनी थी तो अब तक गल गई होती। और जो लोग कहते हैं, एक और बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है रनर से कि रनिंग ऑन अ हार्ड सरफेस और रनिंग ऑन tarmac roads, it's harmful for your knees। तो उसमें मैं एग्जांपल मिलिंद सोमन का देता हूँ, बेयरफुट रनर है वो, और 1 लाख किलोमीटर अब तक दौड़ चुके हैं वो। तो अगर एंड ही इज अराउंड 55 और 56 अभी। तो अगर गोडे खराब होने हैं, अगर नीज खराब होनी है, तो कब? 55-56 साल हो गए, 1 लाख किलोमीटर हो गए, नंगे पैर। तो और वो सिर्फ सड़क पे भागते हैं मेजरली, उन्होंने दिल्ली बॉम्बे बेयरफुट किया हुआ है। तो वो कब खराब होंगे? और अगर कोक से हड्डियां गलती हैं तो वो कब गलेंगी, है ना? तो इसमें इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ह्यूमन बॉडी इज एक्सट्रीमली अडेप्टेबल। तो वो इस पानी पे भी अगर आप सरवाइव करो तो 30 से 40 दिन आप पानी पे भी सरवाइव कर सकते हो। वो इतनी अडेप्टेबल है कि पानी में से भी कैलोरीज निकाल सकती है। और मैंने लाइव देखा हुआ है, अपने ऊपर टेस्ट किया है। मैंने लास्ट जो 222 किलोमीटर क्वारंटीन बैकयार्ड अल्ट्रा करी थी पिछले साल ही अप्रैल में, 4 अप्रैल को। तो मैं सिर्फ कीनू का जूस था, फ्रेश कीनू का जूस, वो भी 4-5 ग्लास, सिर्फ उस जूस और पानी, विदाउट एनी सॉलिड फूड, विदाउट एनी जेल्स, विदाउट एनीथिंग, 33 आवर्स, 2 स्लीपलेस नाइट्स एंड 222 किलोमीटर्स। तो बॉडी के अंदर वो कीटोसिस का प्रोसेस जब एक्टिवेट हो जाता है तो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो उसको। तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन थिंग कि आपको क्या सूट करता है। ट्रेनिंग के टाइम उसको ट्राई करो और फिर उसको रेसेस के ऊपर और इवेंट्स के ऊपर लेके जाओ। बट कोई इसका थंब रूल और एक आंसर नहीं हो सकता कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स पे रनिंग हो सकती है, या सिर्फ जेल्स पे रनिंग हो सकती है, या BCAA लेना जरूरी है, या प्रोटीन लेना जरूरी है। तो इसका कोई भी और सिर्फ कार्ब्स पे ऊपर हो सकती है। मैं फैट के ऊपर ज्यादा रिलाय करता हूँ कि आप जो हम 120 से 140 की हार्ट रेट के ऊपर रन करते हैं, उसमें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। जब आपने एक बारी वो फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर दिया, फिर आपको एक्सटर्नल न्यूट्रिशन की लंबी चौड़ी जरूरत ही नहीं रहती। और बहुत सारे वर्ल्ड के फाइनेस्ट ऑफ द अल्ट्रा रनर्स हैं जो इसी फैट बर्निंग प्रोसेस के ऊपर बहुत सारी अल्ट्राज दौड़ देते हैं। तो मतलब नॉट ओनली मी, मतलब मैं तो दौड़ी, मतलब उनके लेवल उस स्ट्रीक का, उस लीग का ही नहीं हूँ, बट जो अकम्पलिश्ड अल्ट्रा रनर्स हैं इंटरनेशनल अरीना में, मैं उनके एग्जांपल से ये बता रहा हूँ। अकम्पलिश्ड रनर्स, मुझे एक नाम याद आता है, उनका नाम है माइक मैकनाइट, जो यूएसए के रनर है। he calls himself as a 0 calorie runner, and वो keto diet follow करते हैं, maybe, and he does around 12 to 16 hours fasting, but he has done a 100-mile run in 0 calories. जो तो वो है is something similar to your story when you talked about it, and I think last year only he had done that, and he is going to repeat that again, 100 miles in 0 calories. Mike. Yes. तो वो I also follow 14 hours of intermittent fasting. Generally, I try to practice that. I generally do early dinners and late breakfast.
नथिंग इन बिटवीन। उसके बीच में चाहे हाफ मैराथन करता हूँ या 30 या 40 किलोमीटर्स, आई डू नॉट कंज्यूम एनीथिंग, नॉट इवन वाटर। सो उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। ओके तो यहाँ पे एक रनर है, ही 72, उनका नाम है गोपीनाथ मोहन राव जी, जो मैसूर के रहने वाले हैं। ही इज सेइंग दैट हेलो सर, जायंट लीप इन योर रनिंग पैशन। उनका सवाल आपसे है कि अभी तक उनको कोई इंजरी और एलिमेंट्स तो है नहीं, ही डज अराउंड 15 to 20 kilometers एवरेज रनिंग। डू यू रिकमेंड दैट ही रन वॉक रन करें या कैन ही रन कंटिन्यूअसली? ओके, तो दोनों ही चीजें, अल्ट्रा रनिंग में तो जनरली वॉक रन फॉलो होता है। तो यू हैव टू यू हैव टू हैव योर ओन थिंग, यू हैव टू build your momentum and see what is happening for you and what you can sustain. बहुत लोग अपहिल अल्ट्रास जब दौड़ते हैं तो जब अपहिल होता है उसको वॉक करते हैं और फ्लैट और डाउनहिल को रन करते हैं। बट पर्सनली मुझे सिर्फ रनिंग समझ में आती है, तो 100 केज में भी और 100 माइलर्स में भी आई बेयरली वॉक। सो यू स्लो डाउन अ बिट, आप अपनी पेस को थोड़ा कम करो, बट एक सस्टेनेबल पेस पे कम से कम, बहुत कम ब्रेक लो, बहुत कम वॉक करो। ये मुझे सूट करता है। और वॉक रन इज इक्वली गुड, तो आपको अपने ऊपर टेस्ट करके देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा काम कर रही है। बट वॉक रन से आपको ना, जब आप फिर आपको लालच आने लगता है, उसमें नेगेटिव क्या है कि आपको जल्दी जल्दी से लालच आता है कि आप फिर वॉक करो, तो उसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी वॉक बढ़ती जाती है और रन घटती जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप बॉडी को वो ऑप्शन ही मत दो कि वॉक कोई ऑप्शन है, तो वो रनिंग ही चली जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच जवाब देने के लिए। एंड ओम प्रकाश मालविया जी आपसे दो सवाल कर रहे हैं। एक है आपसे पूछ रहे हैं केशव भाई, हाउ डू यू कंट्रोल द हार्ट रेट विद कंसिस्टेंट पेस? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट ही सेड, आई हैव सीन यू many times closing a run on targeted times, especially 138. ये इतना कंसिस्टेंसी कैसे लेके आते हो अपने रनिंग में? ओके, क्या हम क्वेश्चंस चला सकते हैं, क्योंकि अभी वो लास्ट कमेंट ही स्क्रीन पे आ रहा है दानिश का। हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं चला दूंगा। या सो आई हैव सीन और हार्ट रेट। सो हार्ट रेट बड़ी सिंपल सी चीज है, बिल्कुल उसको सिंपल ही रखना चाहिए, और वो बहुत सिंपल सी चीज है कि हमें पहले हार्ट रेट डिसाइड करनी चाहिए, जैसे कि 120 to 140 थंब रूल है, वरना अदरवाइज आपके जोन 1, 2, 3 उनके टाइम ट्रायल्स होते हैं, उससे निकलता है, वो सब साइंटिफिक तरीके भी हैं, बट मोटा मोटा जो है कि 120 to 140 आएगा। तो आपने पहले हार्ट रेट डिसाइड करनी है, फिर पेस डिसाइड करनी है, पेस से हार्ट रेट नहीं, कि अगर हम 120 to 140 पे है और वॉक नहीं करनी है उसके बीच में हमें, तो रनिंग पोस्चर रखना है। तो हमारे इसमें दानिश भी है और मोहित दहिया इज वन ऑफ माय को रनर। उन्होंने जब इसको फॉलो करना शुरू किया तो उनकी पेस थी 930 और इवन 10, सवा 10 भी जाती थी 140 से नीचे रखने के लिए। अब वो पोस्चर रनिंग है और पेस 10 की है, तो बहुत सारे टाइम क्या होता था, जो लोग पार्क में वॉकर्स होते थे, वो वॉकर्स भी उन्हें ओवरटेक करते थे, तो फिर उसका मुझे फोन आता था कि भैया बहुत जलालत फील होती है कि वॉक करने वाले आपको ओवरटेक करके जा रहे हैं, और वो फिर मतलब मजा भी नहीं आता और बड़ी जलालत फील होती है। तो उनको मैंने ये समझाया कि बिलीव इन द प्रोसेस, और उसके बाद वो उसी हार्ट रेट पे 6 से 7 की पेस तक आ गए। हार्ट रेट वही रही, 10 से 7, 6, 6:30, सवा 7 तक वो आ गए। तो यही प्रोसेस है कि हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं करना, हार्ट रेट के हिसाब से पेस को वेरी करना है। आप पेस को और कम कर दो, स्ट्राइड लेंथ को छोटा करो, पेस को कम करो, ये दो चीजों को जब आप करते जाओगे, और यू वुड बी सरप्राइज्ड इन अ मंथ और 2, अगर आपकी वो 8 मिनट पे थी तो वो 6 मिनट पे, 7 मिनट पे आ जाएगी, 2-2, 3-3 मिनट कम हो जाएगी, हार्ट रेट वही रहेगी और आपका पेस कम हो जाएगा। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड, वो नंबर्स, तो वो ये टाइम स्पेशली 138, तो मैं जनरली संडे को सब 100 करने के लिए रेस करता हूँ कि सब 100 हो जाए, सब 90 हो जाए। अब तक 2 बार सब 90 हुआ है और 34 टाइम्स सब 100 हुआ है। तो मैं पेस को पहले ही एडजस्ट करके भी चलता हूँ, और आई ट्राई टू डू अ नेगेटिव स्प्लिट। तो मैं अपनी हार्ट रेट को वही पहले थोड़ा सा कम रखता हूँ, 160 के आसपास या उससे नीचे, कि बाद में इनफ फ्यूल और वो पुश करने के लिए। और नंबर्स के लिए, अच्छा दूसरा क्या है कि नंबर्स के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तो जनरली आई ओवर पुश इन द सेकेंड हाफ, बट आई अचीव दैट। और मैं जितनी भी अब तक रन्स करी हैं, आई ट्राई टू फिनिश इट विद अ स्प्रिंट।
तो चाहे वो 100 किलोमीटर है, चाहे वो 21 किलोमीटर है, और चाहे वो 200 किलोमीटर है, तो मैं रन को हमेशा एक स्प्रिंट से खत्म करने के लिए, और वो लास्ट में एनर्जी या तो आ जाती है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो मैंने अभी एक चैलेंज किया था 4x4x48, मैं उनका नाम डेविड गॉगिंस डेविड गॉगिंस, यस, डेविड गॉगिंस वर्ल्ड का फिटेस्ट और मोस्ट एंड्योरेंस वाला इंसान उन्हें कहा जाता है राइटली। तो वो एक चीज बोलते हैं जो मुझे भी शुरू से समझ में आती थी कि जब आपकी माइंड पूरी तरह से गिव अप कर रहा है, बॉडी पूरी तरह से गिव अप कर रही है, तो वो तब माइंड टेम्परेरीली गिव अप करता है, और उस टाइम तक आपने सिर्फ 40% एनर्जी कंज्यूम की होती है बॉडी में, तो 60% अभी बचा होता है उसके बाद। तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर मैं हमेशा अपने सेकेंड हाफ को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता हूँ, एंड इन 90% ऑफ द रेसेस मैं कर भी पाता हूँ। Very good. David Goggins is someone who has got also the world record for the highest number of pull-ups. Yes. जो he had challenged, that is amazing how he is actually. और उनके वर्कआउट्स भी काफी फेमस है. Yes. So अगर आपका जो अभी last year was lockdown, so from coke runner to highway runner, you became a lockdown runner and you participated in the backyard ultra where you covered a distance of 222 kilometers. Tell us about it. Why did you do it? Running in the terrace for so long, and how did you manage it? और ये जितनी भी चीजें जो भी आपने बोला, हाईवे रनर, ये सब मेरी मजबूरी थी, तो इट वाज ऑल इंसिडेंटल एंड एक्सीडेंटल। कि जब लॉकडाउन हुए तो सब पार्क्स बंद हो गए, और ऑप्शंस, और जहां मैं रहता हूँ वहां पे रनिंग करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है। तो जब ये हाफ मैराथन की स्ट्रीक शुरू हुई, तो मैं जब मुझे पता था 21 ही करना है, तो मैंने अपना पहले हमारा जो लूप था वो 8 किलोमीटर का था, जिसमें मैं दौड़ता था। पूरा शहर हमारा 8 किलोमीटर में खत्म हो जाता है, पूरा चक्कर लग जाता है, और सिर्फ 8 किलोमीटर होते हैं। तो उसके जब 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो माइंड थोड़ा गिव अप करता है कि यार अभी एक और पड़ा, एक और पड़ा। तो मैंने लूप को जब बड़ा करना शुरू किया, तो मैंने हाईवेज को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो फिर मुझे बहुत सारे खूबसूरत रास्ते भी मिले, और फिर 21 में वो खत्म नहीं होता था, क्योंकि वो अच्छी जगह जो है 25 किलोमीटर के बाद जाके शुरू होती है। तो मेरा फेवरेट डिस्टेंस जो बीच में बना वो 33 था, क्योंकि उस एक बहुत सुंदर पैच आता था मेरे रनिंग के दौरान, तो वो उसको कवर करके वापस घर तक आने के लिए 33 किलोमीटर बनते थे। तो वो अल्ट्रा रनिंग भी वहीं से शुरू हुई कि 21 का जब आपकी प्रैक्टिस रन थी 33 की होने लगी हर रोज, तो फिर 42-50 बहुत इजी हो गया टैकल करना। तो ये सब कुछ एक्सीडेंटल है, तो मैंने इसमें से कुछ डिसाइड करके नहीं किया। और अगला जो है कि टेरेस पे दौड़ना कैसे हुआ, तो संडे हाफ मैराथन, संडे को हाफ मैराथन दौड़ना, अब वो ना एक धर्म मेरे लिए, वो एक धर्म है कि मोहित शर्मा भी, हम इसको भी शायद डिस्कस करेंगे, नाउ फार्मर रनर जो इन्होंने लिखा है। तो अब मैंने दोनों चीजों को क्लब किया है, फार्मिंग और रनिंग को, पिछले 2 साल से। तो संडे हाफ मैराथन को 21 या 19 मार्च को संडे था, और मोदी जी ने एक दिन का लॉकडाउन किया था सबसे पहले 5 बजे से, कि 5 AM से संडे के दिन पूरा दिन लॉकडाउन रहेगा, पहला टेस्टिंग जो फेज था उसका। तो अब वो संडे था, अब वो संडे मेरे लिए धर्म है। तो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करके, और मोदी जी की भी रखी, और अपने संडे की तो रखनी थी। तो आई स्टार्टेड माई रन एट 12:05 AM, रात को 12:05 पे डेट बदल गई, संडे शुरू हो गया, और 2 बजे तक मैं वो रन करके आ गया, सो गया। तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि रात को कोरोना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कि तुम्हें तो अब तो बंद करनी चाहिए रनिंग, किसी ने सड़क पे थूका होगा तुम्हें उससे कोरोना हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ज्यादा लोगों ने। तो फिर उसके 2 दिन के बाद मोदी जी ने परमानेंटली लॉकडाउन कर दिया 21 डेज का। तो फिर वो लोग और खुश हुए, फिर उन्होंने वहीं मेरी वॉल पे लिखा है, जहां भी कहीं मैंने पढ़ा, कि अब कैसे करोगे, अब करके दिखाओ, संडे आएगा तो अब मजा आएगा, अब तुम नहीं कर पाओगे। तो फिर और मुझे हमेशा से ही ना, जहां सड़क नहीं होती वहां जाने में मजा आता है, कि जहां रास्ता नहीं है, जहां सड़क ही नहीं जाती वहां जाने में मजा आता है, कि आई हैव बीन एक्सेंट्रिक बाय अप्रोच सिंस माय चाइल्डहुड, इट्स इनेट टू मी। तो रात को बैठे बैठे जब मैं उनको सुन रहा था, उसके 10 मिनट में ही मुझे क्लिक किया, और आई डिसाइडेड देयर एंड देन कि मैं अब 21x21 करूंगा, और घर के अंदर रह के करूंगा। तब तक छत मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि वो जो हमारा घर है वो 3 फ्लोर्स का है, तो मुझे अपने घर की छत देखे हुए 10 साल हो चुके थे, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि छत एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 3 फ्लोर्स चढ़ के किसी और की टेरिटरी से आप कहाँ ऊपर जाओगे।
तो वो मैंने कभी देखी नहीं थी, तब तक मेरे दिमाग में ये ऑप्शन नहीं थी, बट मुझे पता था कि मैंने करना है। अच्छा, और जितनी भी चीजें मैंने करी है वो इस वजह से हो पाती हैं कि मैं पहले इवेंट को मार्क करता हूँ कि भैया ये करना है, फिर रास्ता बनाता हूँ। जनरली लोग क्या होते हैं कि पूरे प्रोसेस को पहले डिस्कस करते हैं, ये हो गया तो उसने रोक लिया, तो पुलिस वाले ने रोक लिया, तो थक गए, तो टांग टूट गई, तो वो तो को पहले डिस्कस करते हैं और फिर आगे मंजिल तक की बात करते हैं। मैं पहले मंजिल को डिसाइड करता हूँ, फिर मुझे पता रास्ता तो बन ही जाएगा, हम जैसे मर्जी बना लेंगे। और ये मैंने बहुत, जैसे मैं लेह लद्दाख बाइक पे गया हूँ और मैंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं लाइफ में। मैं जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी ठीक से नहीं बना था, मैं बाइक पे बॉम्बे चला गया था, कश्मीर कन्याकुमारी मैंने कार पे किया हुआ है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तवांग तक किया हुआ है नॉन स्टॉप, 55 आवर्स, 5000 या 3000 किलोमीटर नॉन स्टॉप। तो ये सब चीजें मैंने उसके अंदर बहुत सारी हार्डशिप्स आती थी, तो पर अब तक मैं ठीक ठाक कर आया, तो मुझे पता है कि रास्ता बनाओ तो बन जाता है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि कमजोर लोग दलीलें दिया करते हैं कि जिसने काम करना होता है, काम करने का एक ही तरीका है कि काम करना है, इवेंट मार्क किया, उसे करना है और वो हो जाता है। तो तब तक कोई रास्ता नहीं था कि 21x21 कहाँ हो रहे हैं, बट मुझे पता था कि मैं करूंगा, चाहे चल के करूंगा, चाहे कमरे के अंदर करूंगा, जैसे भी करूंगा। तो फिर सुबह तक 4 बजे मेरे दिमाग में आया कि छत पे किया जा सकता है। तो फिर मैंने नॉक किया, अपने ऊपर वाले कजन को उठाया, वो इरिटेट हुआ, फिर मैंने छत पे शुरू किया। फिर 5वें दिन रेजिस्टेंस भी आई कि भैया आप ना थोड़ी सी लेट कर लिया करो। मैंने कहा अच्छा, मैं आधा घंटा लेट कर लूंगा शुरू। वो कहता नहीं, मतलब 11 बजे, कि भैया मैं तो 11 बजे सो के उठता हूँ, तो अब 11, मतलब मैं 5 बजे या 4:30 ही रन पे चला जाता था सुबह। तो वो कह रहा, मैंने कहा मैं आधा घंटा लेट कर लेता हूँ, वो कहता 11 बजे। तो 11 बजे तो 42-43 डिग्रीज हो जाता है तब तक। तो फिर वो चैलेंज हुआ, फिर इधर किया उधर किया तो 21x21 ऐसे वो खत्म हुआ। उसी के बीच में ये क्वारंटीन बैकयार्ड अल्ट्रा आई कि अपने घरों में ही और कन्फाइंड एनवायरनमेंट्स में करो, और अगर बाहर जाने के लिए मनाही है तो ट्रेडमिल पे करो। तो और मैं ट्रेडमिल को दौड़ने को कभी प्रिस्क्राइब नहीं करता, और मैं कभी दौड़ता भी नहीं था ट्रेडमिल पे। तो बट वो मजबूरी में जब कोई और ऑप्शन नहीं दिखी, तो लास्ट ऑप्शन ट्रेडमिल थी। तो मैंने अपने किसी फ्रेंड से बोरो किया, लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत मुश्किल से लाए, वो मेरे कमरे के अंदर नहीं घुसी फिर वो ट्रेडमिल। फिर दरवाजा, फिर कारपेंटर को बुलाया, फिर दरवाजा खुलवाया, फिर ट्रेडमिल को कमरे के अंदर किया, और फिर इस तरह से वो जर्नी शुरू हुई। अच्छा, अब दौड़ते दौड़ते, जो मैंने कहा ना, हमेशा बी प्रिपेयर्ड विद द प्लान बी, जो मेरे पास इसमें था नहीं। मैं दौड़ रहा हूँ, अब मशीन को तो पता नहीं कि मेरे साथ इतना सारा अत्याचार एकदम से होगा। तो उसके ऊपर हीटिंग का मैसेज आया 4-6 घंटे के बाद कि इसको थोड़ी देर के लिए आपको बंद करना पड़ेगा, ओवरहीट हो गया है आपका इंजन, मशीन जो भी है। और अब इसको, और वो सडनली एब्रप्टली बंद हो गई। और वहां पे उसमें क्या कि आपको हर 1 घंटे में एक 6.7 किलोमीटर का लैप करना ही करना है। अब उनको तो नहीं मैं कह सकता मेरी मशीन बंद होगी, वो कह रही है 10 मिनट के लिए खड़ा रखना है। तो उस टाइम पे मैंने दरवाजे को, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, ब्लैकआउट हुआ, मैं दौड़ के बाहर गया। फिर मैंने लॉकडाउन या उसको, मतलब अपनी गली में ही, कि मुझे तो था कि लैब खत्म करना है किसी तरह, मुझे सिर्फ वही दिख रहा था। तो मैंने दरवाजा खोला, वो लॉक था, कांपते हुए हाथों से चाबी खोली, चाबी से ताला, मतलब उसको किसी तरह से खोला, उसमें 2-3 मिनट वेस्ट हो गए। फिर मैंने बहुत तेज स्प्रिंट करना पड़ा क्योंकि वो लैब बिल्कुल जा रहा था। तो लॉकडाउन के अंदर क्या था कि सड़कों के जो ऑनर्स थे वो डॉग्स, कुत्ते बन चुके थे, क्योंकि जब सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल रही, हम नहीं चल रहे, उनकी टेरिटरी होगी। तो वो बड़े मजे से घर बना के बैठे हुए थे, अंधेरा था। इट वॉज 3:30 AM जब ये इंसिडेंट हुआ, तो वो 3:47 AM हो गया, और मुझे 13 मिनट में शायद 2.5 किलोमीटर करने थे अभी। और तो वो बिल्कुल एज एज पे जा चुका था। और उस टाइम पे आप ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते, क्योंकि आप, हम 33 घंटे दौड़ने की बात कर रहे हैं। तो वो अगर मैं इसको स्प्रिंट करके या फास्ट करके खत्म करूंगा, तो मैं अगले लूप्स के लिए अपने आप को बर्नआउट कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छे से पता था, जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। तो मैं बड़े इजी पेस पे करता था, बट वो मुझे स्प्रिंट भी करना पड़ा सब कुछ, तो मैं बहुत तेज स्प्रिंट करके जा रहा था। तो वो 4-6 कुत्ते सड़क पे ही झुंड बना के बैठे हुए थे, या रह रहे थे वो वहीं। तो मैं उनके अंदर ही आई कोलाइडेड, और वो सारे मेरे ऊपर झपटे इकट्ठे। तो वो मेरे यहाँ तक, स्टमक तक उन्होंने पंजे मारे, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। बट मुझे ये पता था कि लूप खत्म करना है। तो मैं वहां पे पहले तो स्टैंड स्टिल हो गया, उन्होंने जो करना था वो किया, 1-2 मिनट वो भौंके, फिर मैं बिल्कुल धीरे से चल के निकला। तो आखिरी में मुझे वो शायद 4:12 पे, 4 मिनट और 12 सेकंड में वो किलोमीटर खत्म करना पड़ा, बट मैंने वो किया। 10 सेकंड पहले वो लूप खत्म हुआ, फिर घर आके ट्रेडमिल दोबारा से बनाई और किया। तो इस तरह से करते कराते फिर वो दोबारा गर्म हो जाती थी, फिर मैंने छत पे किया। तो ये सब करके 33 आवर्स में 222 किलोमीटर हुए। और दैट
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी। यू नो, उस कहानी में सब कुछ है, एक्शन, इमोशन, यू नो, सब कुछ है। मे बी ये पिक्चर बन सकता है इसमें, लाइक, यू नो, लाइक इट कैन बी a very nice scene of a hero running, you know, and getting attacked by dogs but still running after that. So that is such a wonderful story. यहाँ पे एक सवाल आया है आपको पंकज शुक्ल से, जो कहते हैं उनके बेटे ने सवाल पूछा है, छोटे बेटे ने, हाउ कैन यू रन so many kilometers every day? वो ये धीरे धीरे ट्रेनिंग से होता है, और ये इट्स ऑल अ माइंड गेम। और दूसरा चीज वही कि जब मैं हार्ट रेट को निचले जोन्स पे रख के ट्रेन करता हूँ तो फटीग कम होता है और रिकवरी टाइम आपका फास्टर होता जाता है। Okay, that's great. 100 days of running and आपका जो है काफी गहरा रिश्ता है. So just tell us about, because you are the event mentor now for the 100 days of running, and the first time when you participated, the first time it was in India, I think you did an amazing 5,300 kilometers. Just tell us about ये रिश्ता and why do you like it so much? हाँ, क्योंकि वहां जो मेरी अल्ट्रा, जब मैंने उसको शुरू किया तो आई टुक इट एज अ ट्रेनिंग फॉर माय अल्ट्रा रन्स। तो मुझे स्टेडियम रन्स और A2B तो शुरू से ही पसंद था, तो वो मुझे प्लेटफॉर्म दिखा कि मैं अल्ट्रा रनिंग के लिए ट्रेन कर सकता हूँ। तो मैंने पार्टिसिपेट उस जोन से किया था कि मैं अल्ट्रा रन्स के लिए ट्रेन करूंगा। बट फिर वो नंबर्स जहाँ पे होते हैं तो मैं बहुत इजीली डाइग्रेस हो जाता हूँ और डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो 2-4 दिन जब अच्छी रनिंग हुई और पहले हफ्ते के बाद जब लीडर बोर्ड आया तो आई वॉज एट रैंक 1। तो और 1 मुझे मतलब 1 के साथ मेरा मेरे कार का नंबर भी 1000 है, और 1 मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। 111 मेरा फेवरेट डिस्टेंस रहा है, मैंने 15 बार 111.11 किलोमीटर किए हैं। तो वो एक नंबर बड़ा सुंदर भी लग रहा था, और वो अच्छा किसको नहीं लगता। तो आई गॉट हुक्ड अप देयर कि इसको बना के रखना है। तो उसकी मैंने बहुत सारी कीमत अदा करी थी उन दिनों में। तो बढ़ता गया कंपटीशन, जो सेकंड थर्ड पे हैं वो भी पूरा जोर लगा रहे थे। तो वो 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70 किलोमीटर पे गई जर्नी। 50 दिन के बाद, 50 डेज के बाद मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया अपना बिल्कुल, क्योंकि इतना फटीग होता था। दिन में मैं 12-12 घंटे दौड़ ही रहा था। तो लास्ट तक मैंने वो बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी बना दी थी कि मैं 3 हाफ मैराथन एक दिन में करूंगा। तो जुलाई 2018 में आई डिड 83 हाफ मैराथन इन 1 मंथ। Wow. तो जब उसको करते कराते तो आई गॉट रैंक 1। और बट उसके उसमें मेरा वेट 70 kg से 54 kg रह गया। आई एम 6 फीट टॉल, तो 6 फुट का बंदा 54 किलो पे, मतलब आई वॉज लुकिंग लाइक अ स्केलेटन। और माई फैमिली पेड द प्राइस, अंशिका पेड द प्राइस, सबने किया। बट मुझे लगता है इट वॉज ऑल वर्थ के। जिस चीज को करो उसको शिद्दत से करना चाहिए। तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने वो क्यों किया। तो वहां से फिर अगले साल से दे आई वॉज मतलब दे मेड मी द इवेंट मेंटोर। तो आई एम एक्टिंग एज एन इवेंट मेंटोर फॉर HD। और उसमें फिर हमने 2-3 क्लब्स बनाए कि वही नंबर्स का, कि 1111 किलोमीटर, 1111 किलोमीटर्स, 2222 किलोमीटर्स एंड 3333 किलोमीटर्स। तो उस क्लब में लोग आते गए, 10-10, 20-20 लोग। उनको मैं जितना अपने एक्सपीरियंस से बता सकता था कि माइलेज को कैसे टैकल करना है, तो करते रहे। और लास्ट ईयर ममता शर्मा ने, रामवीर ने, दानिश ने, इन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डिस्टेंसेस किए। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप डिस्टेंसेस को फ्लरिश करते हुए देखते हो। Okay, that's nice. So running, you know, you run almost every day now. So which body part hurts the most? My quads hurt the most। पहले तो सब जगह दर्द होती है। देखो, जब आप रनिंग शुरू करते हो तो आप पूरा, और अगर आप एक अच्छी हिल रन करते हो ना, कि अप हिल और डाउन हिल जिसमें अच्छे से आया, आप उसको रेस की तरह करो। अच्छा, लोग कहते हैं कि ना टांगों की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि भाई रनिंग इज ऑल अबाउट लेग्स, कि आप लेग्स को ज्यादा किया करो। जिम में भी लोग बताते हैं। बट पूरी बॉडी का एक एक पार्ट यूज होता है। वो इसी चीज से समझ में आता है कि मैंने एक रेस किया था जिसमें आपको 4000 फीट चढ़ना था और 4000 फीट फिर उतरना था। तो मैंने दोनों को अच्छे से खींच के किया था, और उसमें टाइम भी मेरा काफी अच्छा आया था। 3 दिन तक मेरी बॉडी का हर हिस्सा, ऐसी ऐसी मसल्स मुझे फील हुई कि जो मुझे पता ही नहीं था कि बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब रनिंग में हर मसल ग्रुप यूज होता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और उसैन बोल्ट, द फास्टेस्ट ह्यूमन ऑन द अर्थ,
वो खुद बताता है कि मैं लेग से ज्यादा अपने शोल्डर्स और आर्म से रन करता हूँ, तो सारी चीज यूज होती है। तो शुरू में तो सब कुछ दर्द होगा, तो मेरे पैर, माय माय फीट और जो नी से नीचे का हिस्सा है वो अब काफ्स, एंकल्स, ये सब दर्द नहीं करता। क्वाड्स और ग्लूट्स में आई फील पेन आफ्टर माय लॉन्ग रन्स, 21 तक तो नहीं बट आफ्टर माय अल्ट्रास। ओके, गौरव वी नो, राइट। या गौरव ने कहा कि आपने उनको इंस्पायर किया टू डू 2019 किलोमीटर्स इन 2019 आई थिंक सो, सो ही जस्ट और ये सेइंग वो थैंक लोग यू फॉर दैट। और ये वो लोग हैं कि जो जिनका कोई रनिंग बैकग्राउंड लंबा चौड़ा नहीं था, जो आज उसके बाद गौरव ने कोई बहुत ज्यादा रनिंग उसके बाद नहीं करी, तो ये उस चीज का एग्जाम्पल है कि कोई भी कभी भी किसी भी डिस्टेंस को टैकल कर सकता है। तो उसने ठाना कि मुझे 2019 किलोमीटर करना है, तो उसने कर दिए, जबकि उसके बाद पीछे बहुत सारा बेस नहीं था, और वो आजकल भी उतनी रनिंग नहीं कर रहा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इंजरीज हैं, ऑफिस है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रनिंग कि आपको कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ एक कन्विक्शन चाहिए एंड यू आर थ्रू। वंडरफुल। सो वी नो दैट ड्यूरिंग रन यू लाइक टू ड्रिंक कोक, लेकिन पोस्ट रन में आपका फेवरेट फूड्स क्या है? वैसे तो सबसे ज्यादा इस पे भी एक इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग है, हम लोग ना हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखते हैं रन से पहले और रन के दौरान, और बहुत सारे लोग ओवर हाइड्रेट कर लेते हैं। उससे आपको साइड स्टिचेस होते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं रादर, कि जब आप ओवर हाइड्रेट करते हो। तो हाइड्रेट करने का तरीका क्या है कि आपको 2 सिप पानी पीने हैं एवरी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वो सबका अपना है। सिर्फ 2 सिप गले को गीला करना है और आगे चलना है, हमने गड़गड़ करके नहीं पीना। ये रन तक है, यहां तक तो लोग ध्यान देते हैं हाइड्रेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रन के बाद आपको बहुत ज्यादा हाइड्रेट करना चाहिए, 5 से 7 लीटर पानी रन के बाद अगले 2 दिन तक, नेक्स्ट 48 आवर्स तक पीना चाहिए, जिसको 90% ऑफ द अच्छे एथलीट्स भी मिस कर देते हैं कि रन होगी अब आराम करो, बियर पियो और सो जाओ, है ना। तो जब हमने अल्ट्रा रन करी होती है तो बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, तो उसको फ्लश आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए आपको बहुत सारा हाइड्रेट करना चाहिए रन के बाद। और जो दूसरा, मैं ये तो सबको करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है। अगला बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा ना लगे, बट जो मेरा वो है, तो आई ईट लॉट्स ऑफ मटन आफ्टर माई रन। और मैं रन के बीच में भी खा लेता होता हूँ, कि जब मैं अल्ट्रा रन कर रहा होता हूँ तो आई डोंट माइंड ईटिंग मटन इन बिटवीन एज वेल। तो क्योंकि आई आई रिलाई अपॉन फैट्स, और मुझे तो जो टेस्टी लगता है, जो स्वाद है ना, मैं स्वाद अनुसार चलता हूँ। कोक अच्छी लगती है तो कोक पी रहे हैं, मटन अच्छा लगता है तो मटन खा रहे हैं, तो मैं बहुत सारा मटन खाता हूँ रन के बाद। अच्छा, तो Gagandeep Singh, when you talked about the 2019 kilometers by Mohit, Gagandeep Singh is saying आपने सिर्फ मुझे 100 किलोमीटर भगाया, that is, वो कट्टी है आपसे बोलता है, so he's not very happy with that. So मैंने सिर्फ, जो हम हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं, विदाउट डूइंग एनी इंटरवल्स, विदाउट डूइंग एनी अदर स्टफ, इस बंदे ने 100 किलोमीटर 13 घंटे में बहुत आराम से कर लिया। जो मेरा फास्टेस्ट था, जो मेरा पर्सनल बेस्ट था, इंडियन फ्लैग रनर्स तेजिंदर सिंह इंडिया और भटिंडा रनर्स ने होस्ट किया था, तो उसमें भी आई वाज द पार्टनर इन क्राइम विद देम, और उसमें गगन ने 13 घंटे में 100 किलोमीटर किए थे, सिर्फ हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर। और ये ही इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ 1 मिनट यहाँ पे। तो ही इज लाइक अ मशीन, इसको आप जितने किलोमीटर बता दो ना कि 20 करने हैं, चाहे अच्छा, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, जितने भी लोग देख रहे हैं तो वो दे वुड बर्स्ट इनटू द पील्स ऑफ लाफ्टर आफ्टर हियरिंग दिस थिंग। तो उसने बोला अल्ट्रा करनी है जी, 100 माइल करने हैं, ये तैयारी करा दो जी। मैंने कहा ठीक है जी, तैयारी हो जाएगी। तो हमने प्लान बना दिया। मैंने कहा 2 तरीके हैं अल्ट्रा को टैकल करने के। एक, कि आप सुबह, संडे को सुबह एक बड़ा डिस्टेंस करो, शाम को जैसे कि 30 किलोमीटर सुबह किए, शाम में 40 किलोमीटर करो। और दूसरा तरीका है कि सैटरडे को 30 किलोमीटर करो और संडे को 40 किलोमीटर करो। इसके अंदर ओ आर, अंग्रेजी वाला ओ आर था, तो ये हमारे सरदार जी हैं, पंजाबी हैं, तो इंग्लिश में शायद इसका हाथ तंग था, इसने वो और को हिंदी वाला और समझा। तो इसने सैटरडे को 30 किए, संडे को फिर 30 किए और शाम को 40 किलोमीटर कर दिए। तो इसने दोनों को मिक्स करके खत्म कर दिया। तो मैंने कहा यार ये तो रिकवरी के भी अगेंस्ट है, ये तो मैं प्रिस्क्राइब ही नहीं करता। कहता पाजी मुझे तो समझ में आया कि ये दोनों चीजें करनी है। तो मशीन की तरह आप इसको किसी भी डिस्टेंस के लिए सेट कर सकते हो, और ये कोई भी डिस्टेंस फॉर
इमेमोरेबल टाइम कर सकता है. Okay, that is good. So ये जो है बैकयार्ड अल्ट्रा में जहां पे आपने टेंशन के साथ एक्शन इमोशन के साथ 222 किलोमीटर किया था, अगर आपको फुल सपोर्ट दिया जाए, where you got a crew and you're fully supported, maybe they would carry around 1,000 cans of Coke, in the van. What do you think you can run? How many kilometers do you can run, without stopping? I am planning a 300 kilometer run. Okay. Next is 300. Okay. And yeah, 300 is my favorite movie too. और जो कैलेंडर ईयर में मैंने लास्ट ईयर हाफ मैराथन्स की थी वो भी 300 थी. 300 उस कैलेंडर ईयर में थी. फाइनेंशियल में 333 थी. तो 300 किलोमीटर आई वुड ट्राई सम टाइम. Okay. Gagandeep Singh is saying that just because of your training, he was able to do his mileage. तो नंबर्स एंड केशव, रिश्ता अनोखा, क्या है ये रिश्ता? हाँ, लोगों को अच्छा सब कहते हैं कि देखो फिटनेस के लिए कितना कमिटेड है ये लड़का, ऐसा कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो हम ना तो कभी फिटनेस के लिए दौड़े और ना हमारा कभी कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था. जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ रहा था कि आई स्टार्टेड रनिंग एट द एज ऑफ 26. तो आई डोंट हैव एनी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, नो आर्मी बैकग्राउंड, और कुछ भी नहीं किया हुआ. तो ये रनिंग जो चली जाती है ये सिर्फ नंबर्स की वजह से चली जा रही है. जो कंसेक्यूटिव संडे हाफ मैराथन की स्ट्रीक है ये भी नंबर्स का है. 12 को 100 किलोमीटर किए, 111, जो भी खूबसूरत नंबर्स हैं उनको संजोना, दिस इज माय ड्राइविंग फोर्स. तो जितना मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे दिमाग में कभी शांति नहीं होती, जबकि होनी चाहिए. मेरे दिमाग में सिर्फ नंबर्स चल रहे होते हैं. तो अभी मोहित शर्मा ने जो लिखा था हम उसको भी 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं. फार्मिंग एंड रनिंग नाउ. तो अब आई एम इनटू फुल टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो मेरे जितने भी और स्टार्टअप्स थे आई हैव पुट देम ऑन होल्ड या वो ऑटो पायलट मोड पे हैं. तो आई एम फुली डेडिकेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. उसकी वजह से मैं रोज नहीं दौड़ रहा हूँ. बहुत कम माइलेज हो गई है मेरी, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग अराउंड 14 to 16 hours in a day in an open farm and temperature rises जो 42 to 44, अभी 42 डिग्री तक और 50 डिग्री तक जाएगा आने वाले टाइम में. तो वहीं पे आपको इतना स्क्वीज हो जाते हो कि आप रनिंग के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाते. तो आज भी मैंने जो छोटी सी रन करी तो मैंने फार्म के अंदर ही बना लिया कि मैं अपने कपड़े वहीं ले जाता हूँ और जो टाइम मिलता है उसके फार्म के अराउंड ही जितना दौड़ सकता हूँ तो वहां पे दौड़ लेता हूँ. तो ये आज की रन भी वहीं पे थी. तो Wonderful. So, I mean, you were recently also honored for your contribution. Now you run to promote organic farming, and you were, honored by the Chief Minister, Sri Manohar Lal Khattar ji. Tell us, tell the audience about your farm, because we see a lot of lovely pictures and harvest. A recent picture was about the wheat harvest you're having, and how has this running helped you in your farming? Because it is not an easy job for a normal city person, and tell us what people should look forward. अगर उनको लोग बहुत स्टोरी सुनते हैं ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया, इतना टर्नओवर आ गया, what should people expect when they are farming? And just tell us about your journey in farming also. People should expect to write off a huge number from their books when they start organic farming. This is my 3rd year into organic farming and I am not earning anything out of it, and I have written off a good number from my books. तो इसको तो पालना पड़ता है. जैसे रनिंग है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है. तो ऐसे जिस जमीन को हमने 10-50 साल लगा के जहर का आदी बनाया है, एक बंदा जो ड्रग्स के ऊपर है, 10 साल से ड्रग्स ले रहा है, उसको ड्रग्स छुड़वानी हो तो कितना एफर्ट लगेगा. ऐसे ही हमारी सॉइल बिहेव करती है. तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो नई क्रॉप्स को अडेप्ट नहीं करती. तो बट आई एम वर्किंग अपॉन इट, एंड during the last year I yielded some good crops. So it all started with 1 acre of organic farming for my household. हम 3 फैमिलीज हैं जो साथ में रहते हैं, तो उनके लिए मैंने शुरू किया था कि एटलीस्ट हम अपने घर पे जहर ना खाएं. बट आफ्टर लॉट्स ऑफ admiration and pushing from my colleagues and friends, I took it to 4 acres, then 7 acres, and this year I've converted my 14 acre
farm into the complete farm into an organic farm. So it would take time. अगर टर्नओवर के लिहाज से कोई इसमें आना चाहता है तो इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा है, 5 to 8 years इट वुड टेक, अगर आप ईमानदारी से इसको ऑर्गेनिकली वहां पे लेके जाना चाहते हो। बहुत बहुत ज्यादा ईमानदारी रखनी पड़ती है इस काम में। आपके सामने आपकी फसल को कीड़े खा रहे होते हैं, पेस्ट, वायरसेस, जो आपको समझ ही नहीं आते और आपको सब सहना पड़ता है। तो अभी तो हम उसके अंदर बिल्डिंग कर रहे हैं इसको उस लेवल तक ले जाने के लिए कि फाइनेंशियली वायबल हो। अभी तक तो ये मॉडल फाइनेंशियली वायबल नहीं हुआ है, बट रनिंग हैज हेल्प मी इमेंसली, जो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, क्योंकि खेत के अंदर ही आपको जितना चलना पड़ता है, क्योंकि 14 एकड़ के फार्म में आप 10 चक्कर भी अगर ढंग से लगाओगे तो 10-20 हज़ार स्टेप्स हो जाते हैं। तो पिछले 2 साल से एक हाफ मैराथन मेरी फील्ड के अंदर ही हो जाती है चलते हुए, और वो ऑफ रोड है या ट्रेल है, रनिंग की भाषा में वो एक ट्रेल है कि आपका पैर सीधा नहीं पड़ता, ऊबड़ खाबड़ सा है, पैर धंसता है मिट्टी में या रेत में, तो उसमें बहुत सारा जोर लग जाता है। तो इस वजह से अब पिछले 2-3 महीने से मैं बहुत सारी रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4:25 पे चला गया था। अभी आके मैं 7:40 पे आई लैंडेड इन माय होम, एट माय होम, और आई टुक अ शावर और अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अभी तो काफी सारा चाहिए। रनिंग भी बहुत सारा मांगती है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं बोलता हूँ कि रनिंग बहुत मांगती है। अगर ढंग से करनी है तो बड़ी डेडिकेशन देना पड़ता है। लोग बहुत सारे शॉर्टकट पूछते हैं कि यार मैंने 2 बार इंटरवल्स करे थे, 2 बार मैंने पूरा जोर लगाया, टाइम नहीं आ रहा। तो वो समझते नहीं है कि इसको पालना पड़ता है। तो यू शुड गिव टाइम to these things. Both the things, running and organic farming, it's a very gradual process. So you have to be really passionate and committed to be into it. Okay, that's wonderful, and I'm sure that when I look at your progression in life when it comes to running, you are a person who is committed. If you are committed to a cause, then you are forever committed, and you never back off. So that is why you have been able to achieve so many half marathons, and you have been able to run so many kilometers. Because I feel that when you are committed, there is no like half methods for you. If you're there, you're fully there, or you're not there. So it's like nothing in between. There is no in between lines for you. And I'm sure when I see the passion with which you post your pictures and show everything, I see there's a lot of passion, and I'm sure, 100% sure that it will work out for you, and I'm pretty sure about that. Because that's the way you are. Few people have admired the way you have talked about the heart-based training. Pratnya Pujari saying that very valuable and informal, good tips and positive reviews about HR-based training. Brajesh Singh has told you that you are the mentor and guru, and helped him immensely last year for the 100 days of running. So yes, thanked you for that. Just wanted to ask, you have achieved so much in running. Any dream races which you feel, मुझे ये भी करना है? Yeah, there are many. Number one, topmost thing is Badwaters. Badwaters, toughest human race on earth. Spartathlon, number 2. Backyard Ultra in Tennessee. I want to qualify for that and run there. These are the 3 things. और इसके अलावा ये तो हो गए इवेंट्स, फॉर्मल इवेंट्स। जैसे संडे हाफ मैराथन, लोग कहते हैं कि इवेंट बहुत कम करता है, तो बाकी वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा दिखाई देता है। तो संडे इज माय रेस डे। एक जगह जैसे बैंगलोर जाना है, आप बाय एयर जाओगे, होटल में चेक इन करोगे, फिर एक दिन रिकवरी का होगा। और जैसे मैं बहुत सारी बड़ी माइलेज के साथ खेलता हूँ, तो लास्ट ईयर there were 12 consecutive weeks when I did 200 kilometers for a week, running, no walking, no breaks, 200 kilometers for a week for 12 consecutive weeks. तो अगर इसके बीच में मैं कोई भी इवेंट फिक्स करता हूँ कि मुझे जाना है, एक तो वो कॉस्टली अफेयर है, टाइम कंज्यूमिंग है, और जब से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में आया हूँ, देयर इज नो टाइम। मैं एक दिन भी ढंग से खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ। वो मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकल क्या चैलेंजेस हैं, तो आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते हो। टाइम की कीमत है, पैसे की कीमत है,
और जिस हफ्ते आप गए, आपने बैंगलोर की फ्लाइट ली, पहले यहाँ से दिल्ली जाना है, कार को पार्क करोगे, फिर फ्लाइट लोगे, एक दिन वो राइट ऑफ होगा, एक दिन आने का होगा, एक दिन रिकवरी में जाएगा। तो उस हफ्ते के आप 200 किलोमीटर कैसे करोगे? तो मेरे लिए सब कुछ इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, नॉट टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। मेरा पर्सनल जो धर्म है, जो पैशन है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो नंबर्स है। तो हर संडे मेरे लिए एक रेस डे है। तो मैं उसको 52 इवेंट्स, आई एम डूइंग 52 सेल्फ सपोर्टेड इवेंट्स पर ईयर, विच इज अ ह्यूज नंबर वन। तो इसी से जो 3 मैंने इवेंट्स बताए जो फॉर्मल है, स्पार्टाथलॉन, बैड वाटर्स, जो मैं करना चाहता हूँ बॉस्टन क्वालिफाई करके, वो चैरिटी वाले रास्ते से नहीं, बॉस्टन का टाइम क्वालिफिकेशन करके बॉस्टन को दौड़ना, ये एक हमारा ख्वाब है। और देर आर 192 कंट्रीज विच आर लिस्टेड इन यूएन लिस्ट, यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में 192 देश हैं। तो मैं उन सभी 192 कंट्रीज में जाके बैकपैक करना चाहता हूँ, पूरा चल के उन देशों को देखना चाहता हूँ, और वहां पे एक फुल या हाफ मैराथन दौड़ना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक बहुत बड़े बकेट लिस्ट में है कि 192 फुल और हाफ मैराथन इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और अगर मुझे वीजा और सारी परमिशन मिल जाते हैं और मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर पाता हूँ, तो मैं पूरे वर्ल्ड को बाय फुट दौड़ना चाहता हूँ, कि पूरे वर्ल्ड को। और चाइना के एक इंसान ने ये किया भी हुआ है, पूरा जितनी सड़क है हर देश को कवर करते हुए उसने पूरा वर्ल्ड दौड़ा है, और उसकी 43 किलोमीटर पर डे की एवरेज आई थी। तो ये सब है। और आखिरी इस चीज जो रनिंग से रिलेटेड नहीं है, बट एक माउंट एवरेस्ट को चढ़ना, ये एक मेरे बकेट लिस्ट में है कि एक एवरेस्ट चढ़ना। और ये काफी सारी है, तो अभी टाइम कम है, और इसलिए आई वांट टू पुट ऑल माय स्टार्टअप्स ऑन ऑटो पायलट मोड, कि वहां से कुछ पैसे आते रहे और मैं ये सब काम करता रहूं। बट अभी तो आई एम नॉट इन अ स्टेट टू डू दैट। Acha. Good. Wonderful answer. It's nice to hear about all your bucket list. I hope you also add Comrades Marathon to that bucket list also, and, achieve something with like a fastest time by an Indian in that bucket list. Uh, that is me telling you. So if you can add, please add, okay? Sure. We have been Yeah. speaking for almost 1 hour, 12 minutes, Keshav, because you're a man of numbers. I would come to my last question because I know that you come from farm. You would only eat one meal a day, and your पेट में अभी थोड़ा बहुत अभी शुरू हो गया रहेगा because 9 o'clock, it's time for your dinner. Final advice to your fans out here, and there's a fight between Anshika and others saying that who is the number one fan. Anshika said she's the number one and nobody else can take the badge away from her. So I said all the numbers after that people can fight. So that fight is happening in the chat box out here. But final advice to everyone on, if they want to become a runner like you, few tips for them and final advice. My advice would be do not rush. People when they start running, वो जितने भी इवेंट्स होते हैं सबको रजिस्टर करते हैं, बहुत जल्दी अपने पीबीज को क्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो दे शुड नॉट डू दैट। अपनी फाइंड योर ओन पेस और उसको एंजॉय करो, एंड डू नॉट ट्राई टू इमिटेट एनीथिंग और एनीबडी। तो हैव योर ओन थिंग। हाफ मैराथन्स मेरा, जब मैं 2018 में HDR कर रहा था, तो ये हाफ मैराथन्स का नंबर, पैशन, नशा वहां से आया। तो लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्टेड इमिटेटिंग दैट के वी वुड बीट दैट नंबर, तो हम भी करेंगे। अब कुछ लोग बैकवर्ड हाफ मैराथन करते हैं, उल्टा दौड़ते हैं, तो वो उनका, दिस इज देयर वे टू फाइंड योर ओन पैशन रादर देन following or imitating anyone, and go slow, and most important, follow the heart rate based training and enjoy the process. Do not rush. So this would be my final advice to, yeah. Wonderful. It's been wonderful talking to you, and hearing your story. And the audience has been very receptive to hear you speak. I must thank you for that, for coming in and spending the time. I know it's been a tough day for you, but I really appreciate you taking the time. I know that we fixed this after 1 year back. I was in touch with you and when I did a small profile about you, and you corrected me in your numbers. And it is nice to reconnect with you and and chat with you. And you've always been helpful and receptive to my messages. So
Thank you very much. Any final words for your fans? Yeah, no. For this platform, my final word for would be for this platform. I'm really honored to be chatting with you over this platform, and I have hardly missed any of your session, and I must appreciate, yeah, this is not giving back thing, I mean it, and people who know me know this well. I am a no nonsense, cut to cut, straightforward person. So this is a straight compliment to you and this platform, that you have brought polished, both raw and polished diamonds to this platform, and I stand nowhere close to them. मैंने आपको भी बोला था, आपने बड़े अच्छे से उसको जवाब दिया था, मुझे मतलब सांत्वना दी थी, बट मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी बोलूंगा कि जो हीरे आप ढूंढ के लाते हो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आई डोंट डिजर्व टू शेयर द प्लेटफॉर्म विद देम। वो सबने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, विनय शाह जैसे लोग। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर and a little, and at the same time little embarrassment for me to be here, because I don't deserve to share the platform with those gems. But thank you so much, and I would not request, rather I would order you to keep this streak going। हर हफ्ते एक नए इंसान को लाओ। मुझे मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मतलब स्पोर्ट्स में होने के बावजूद आधे लोगों के बारे में पता ही नहीं था जिनको आप इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो इट्स अ, और यहाँ से दिमाग, रनिंग इज ऑल अ माइंड गेम। तो हम जितना माइंड को पॉलिश कर सकते हैं, जितना थॉट्स को मास्टरबेट कर सकते हैं माइंड के अंदर, उतना हम ग्रो करते हैं। तो मेरे लिए दिस इज द फूड। तो जितना मैं ऐसे लोगों के बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, तो दैट ड्राइव्स मी फर्दर। सो प्लीज, और कल आपका सेशन है, आई वुड बी ट्यून्ड इन लाइव, और अगर मैं लाइव नहीं हो पाता तो मैं रिकॉर्डेड सेशन को सुनता हूँ। तो नेवर एवर स्टॉप दिस ट्रीक। इसके अंदर कोई कोविड के अंदर जैसे बॉस्टन जैसी चीजें नहीं हुई, ओलंपिक जैसी चीजें नहीं हो रही, आपकी इस चीज पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए। Thank you very much for that. I'm humbled by your compliments now, or your comments, but but I thank you for that, and it's an effort to tell the stories of everyone, and hopefully that effort can motivate our country to become good in athletics and running, and maybe win an Olympics medal. Then if that small contribution can help, I would be, that's my dream also, that our country wins and our country becomes prominent. Thank you very much for your comment, and it's been a pleasure talking to you. Please be in the studio for a few more minutes. I know you're getting hungry, but just be in the studio for a few more minutes while I thank my audience and tell about another big day tomorrow. Yeah. Thank you. Thank you very much for all the love. It's been such a wonderful session. So many comments and so many people coming in and talking to us. Tomorrow is another, I would say, fanboy moment for me. We are bringing Sriram Singh ji, who's a legend in middle distance running, who has actually brought India to the limelight, unbeaten, never won a bronze medal in his life. Always it's gold or silver, and a lot of things. It's a big fanboy movement for me, and this is like an anniversary also coming up for me on 17th of May 2021 will be 1 year anniversary for the page All India Runners Motivation, and we're getting close to 50 interviews by this time. So the streak of, like Keshav said, the streak of interview every week is, it's not broken. I got few cancellations, but I tried to make it up by doing 2 interviews in 1 week. But thank you very much for coming in, and God bless you all. Tune in tomorrow at 7 o'clock for India's legend, Sriram Singh ji, coming online for the first time, for the first Facebook Live interview. So thank you for coming in.